عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول اذا دبغ الإهاب فقد طهر رواہ مسلم۔ یہ دو تین روایتیں آ چکی ہیں، ان کا خلاصہ میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد آگے والا سبق آئے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں، اس کے پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ جو جانور خود مر جاتے ہیں جیسے گائے ہے، بھیڑ ہے، تو ان کا گوشت کھانا تو حرام ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں۔ اب سوال ہے کہ اس کے اوپر جو کھال ہے، اس کھال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کھال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ کھال کچی ہو اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اور جب اس کھال میں دباغت دی جائے تو اس کے بعد اس کو استعمال میں لانا جائز ہے۔ ایک تو کھال کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس میں بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، بال تو ناپاک نہیں ہوتے۔ بکری مر گئی، بھیڑ مر گیا، گائے مر گئی تو گوشت تو اس کا ناپاک ہو گیا، لیکن جو کھال کے اوپر جو بال لگے ہوئے ہیں جن میں خون سرایت نہیں کرتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے، ایسے سینگ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ چیز پاک رہتی ہیں، لیکن جو کھال کا جو اندرونی حصہ ہے جو گیلا گیلا رہتا ہے، جس میں خون کے دبے وغیرہ لگے رہتے ہیں اور دوسری چیزیں، تو وہ ناپاک ہے۔ اب وہ پاک کیسے ہو جائے گا؟ اس کو دباغت دی جاتی ہے۔ دباغت معنی کو کاشر پوش منڈن، یہ تو یہ سو منڈون تم پت گھس تو سو اندرم پور تہ پاک، ون ہیکون سہ استعمال کرت۔ مثلاً کانٛہہ چیز بناووس تتھ منٛز تھو پتہٕ کانٛہہ چیز روایتین برونٹ کن، یا مثال کے طور پر تتھ پر دپ انسان بتراو تل یا نماز پڑھ، تو اب یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ احاب کہتے ہیں کچی کھال کو عربی میں، اور جلد کہتے ہیں وہ کھال جس کو دباغت کے بعد پختہ کر لیا گیا ہو، اور وہ دباغت کے بعد وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا اذا دبغ الاحاب، کہ جب کچی کھال کو دباغت دی جائے تو فقط طہورا، وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اب اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی کپڑا بنانا چاہیں، کپڑے کے طور پر استعمال کرنا چاہیں، اس کا جوتا بنانا چاہیں، اس کا خوب بنانا چاہیں، اس کا پرس بنایا جاتا ہے، اس طرح اس کی ٹوپی بنائی جاتی ہے، بعض مرتبہ بعض لوگ اس کے لیے کچھ جیکٹ بناتے ہیں، تو جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ روایتیں آگے تفصیل کے ساتھ آ جائیں گی۔ تو یہ آپ نے فرمایا، اور اگر اس کو ابھی دباغت اس کو نہیں دی گئی ہے تو اس وقت تک اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں تصدق علی مولات لمیمونۃ بشاۃ فماتت فمر بها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال هلا اخذتم احابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها میتۃ فقال انما حرم اکلها متفق علیہ۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ روایت اس کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہو، یہ متفق علیہ روایت کہلاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ کی، عبداللہ ابن عباس کی یہ صغیر خالہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک باندی تھی، تو اس باندی کو کسی نے صدقہ کے طور پر ایک بکری دی تھی، تو وہ باندی غریب تھی اس لیے اس کو صدقہ کے طور پر ایک بکری دی تھی۔ اب وہ بکری وہیں بندی رہتی تھی، اتفاقاً وہ بکری مر گئی، اس کے بعد اس بکری کو وہی وہ مری ہوئی تھی تو کہیں دور ذرا اس کو ڈال دیا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے اس بکری کو دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بکری کا تم نے کھال کو کیوں نہیں کھینچا، اس کی کھال کیوں نہیں اتاری آپ نے، یعنی بس کیا جواز حلا اخذتم احابها، تو تم اس کو دباغت دے دیتے
और उससे नफ़ा हासिल करते, उसको काम में लाते। फ़क़ालू इन्हा मैततुन, उन्होंने कहा हज़रत ये तो खुद मर गई थी, ये बकरी, ये तो मुर्दार है। फ़क़ाल इन्नमा हुर्रिम अक्लुहा, फरमाया हाँ मुर्दार तो है लेकिन इसका खाना हराम है, इसका खाना गोश्त खाना हराम है, लेकिन इसके खाल को इस्तेमाल करना हराम नहीं है, यह आपने फरमाया। असल वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मुसलमान का कोई माल ज़ाया न हो जाए। अब ये तो माल है, अब ज़ाया हो जाएगा, अब इसमें अगर कोई जुज़ ऐसा है जिसको मुसलमान इस्तेमाल कर सकता है और उससे नफ़ा उठा सकता है तो उसकी आपने इजाज़त दे दी। तो गोश्त तो आप किसी काम का नहीं रहा, वो तो मुर्दार हो गया, मामला ख़त्म। लेकिन ये जो खाल उसके ऊपर लगी हुई है, इस खाल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर जानवर को ज़बह कर लिया तो उसका गोश्त भी हलाल है और उसकी खाल भी हलाल है, लेकिन खाल खाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन बिलफर्ज अगर किसी ने खाल को पकाया, उसने कहा भाई इसका शोरबा पी लेंगे, तो इजाज़त है। जैसे बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं, सहाबा किराम भूख की वजह से खाल को भी फिर क्या करते थे, पकाते थे। हम लोग भी खाल खाते हैं। कैसे? जब आप दुकानदार से पाया और सिरी लाते हैं, ये कल हिर तो पाचसा खनन, तो खाल के साथ खाते हैं, सिर्फ खाल के ऊपर जो बाल है उसको जलाते हैं। सच कंजन कंजित क्या कर तथ मुसल दजन की तथ दजन पेठम जथ योर जथ दजन तवे कल हिर त्रावन यह सा ये कल हिर रन पे कुछ सात तथ कल हर मज तम जच वाल तम मौजूद मुसलस पे पीत रूदम तथ तमो कन फेचो किन कपर तान। तो खाल जैसे गोश्त हलाल है खाना, ऐसे खाल भी खाना हलाल है। लेकिन खाल चूँकि कीमती चीज़ है, वो दूसरे कामों में आती है, इसलिए आमतौर से खाल को खाया नहीं जाता है। अलबत्ता टांगों के ऊपर जो खाल है, सर के ऊपर जो खाल है, उसको अलग से नहीं निकाला जाता है, इसलिए उसमें जो है वो खाल के ऊपर जो बाल है उसको जला दिया जाता है, फिर खाल समेत उसको खाया जाता है। इतका कौकुड़ मुसलस वालन तो क्यों कौकुड़, मगर अगर तमिस बस्त तथ आप खा सकते हैं। तवे बड़न कोकड़न क्या कर तिमन खंजन, तिमन तम तीर निवन कड़ित और मुसल मौजूद अख्त बड़ म्यूठ आसन, तो उसके समेत उसको क्या करते हैं, पकाते हैं तो खाते हैं। तो मालूम यह हुआ कि खाल खाना हराम नहीं है, लेकिन खाल जो है यह खाने की चीज़ नहीं है, ये दूसरे इस्तेमालों में आ जाती है। तो इस तरह से अगर जानवर मर गया, गोश्त तो हराम है, नापाक है। गोश्त आपके कपड़े के साथ लग जाएगा तो आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। और ऊपर वाला जो हिस्सा है खाल का, वो गोश्त आपके कपड़े के साथ लग जाएगा तो आपका कपड़ा नापाक नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको खाल उतारेंगे तो उस खाल के ऊपर जो गीलापन है, अगर वो आपके कपड़े के साथ लग जाएगा, कपड़ा नापाक हो जाएगा। इसना पाने जानवर मुद मुताश तमिस क्या करो मैं तमिस मंडन सा यह सा बस्त मंडोन कित मंडन अलग अलग तरीके नुन मठा मसस पे बीतुस पे क्या गखड़ा वखड़ा तो त्रो कत मज तापस या आब सकोन चलित रवायती ब्रोट कुन पे सो हकि वन ये मान कि वन से गई बस्त क्या पाक वन चुनत परवाह कह, अब वो काल पाक हो गया, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, पहनने वाला चीज़ उसकी भी इजाज़त है। और अगर आप उसमें कोई चीज़ रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। आगे रिवायत आएगी कि सहाबा किराम पानी रखते थे उसमें, किसमें, खाल में। जी, खाल बहुत काम की चीज़ है। मैंने पुराने ज़माने की खाल को ख़ुद देखा है, बहुत पुराने ज़माने की खाल कि अहले अरब कितकटे साथ इस्तेमाल कर। वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में वो आज भी है वो अजायब घर, तो वहाँ उसमें पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, 1200 साल पहले की चीज़ें भी हैं। कितनी जी, 62 वरी ब्रोट थम खाने का अब मौजूद। और इस तरह से उसके बाद 500 साल पहले और 400 साल पहले की चीज़ें हैं। पुराने ज़माने का काबतुल्लाह का दरवाज़ा भी मौजूद है। इस तरह से पुराने ज़माने के जो है काबतुल्लाह के अंदर जो पिलर लगे हुए थे वो भी उन्होंने निकाल के रख दिए हैं, और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। तो उसमें जाते हैं बाकायदा शीशों के फ्रेमों में उसको लगा दिया है, इबारतें लिखी हुई हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने साल पहले जो जमजम का कुआं था, जमजम के कुएँ के ऊपर जो वो मेंढ लगी हुई थी, तो वो भी मौजूद है। और उसके ऊपर जो लगा हुआ होता था उस ज़माने में वो लोहा, उसके समेत उन्होंने लाग लगा रखा है। और अजीब मामला है कि वो बाल्टी भी मौजूद है,
اور وہ رسی بھی موجود ہے راز سک تھومت موجود تو بالٹین تھی ییٚلہِ پانے ہس پرانہِ زمانہٕ ہٲج گژھان پتہٕ ٲسۍ پانے کیا کڑان آب ٲسۍ کڑان اور پھر زمزم کے کنویں کی جب صفائی ہوئی تو اس میں سے جو برتن نکلے اور پرانے زمانے کے سکے وہ برتن بھی انہوں نے اس میں میوزیم میں رکھے ہیں اور سکے بھی وہاں موجود رکھے ہیں کہ یہ زمزم کے اندر سے جو یہ سکے وغیرہ ملے ہیں تو یہ اسی میں انہوں نے پرانے زمانے کی جو چیزیں انہوں نے رکھی ہیں اسی میں انہوں نے ایک کھال رکھی ہے کیا رکھی ہے جی واللہ عالم انہوں نے اس میں کیا بر رکھا ہے آج تو وہ کھال جو ہے وہ بالکل اس طرح سے کھڑی ہے جیسے کوئی آدمی کھڑا رہتا ہے اس کا تملو بور تھا نا کھڑا تو اس طرح سے اس کو کھڑا کر کے رکھا ہے یوں تو اس میں کیا ہے اس میں ایک تو یہ والا بازو ہے ایک تو یہ والا بازو ہے یوں کھڑے ہیں اس کے اندر کوئی بر دیا ہے انہوں نے کچھ چیز تو اس طرح سے وہ نیچے سے کیا ہے نیچے سے اس کو سیلا ہے عجیب معاملہ ہے اس طرح سے بند کیا ہے کھال سے ہی کھال کو بند کیا ہے ٹیپ چس کمچ دالچی ٹیپ چک دسمس تات تل حض تو اتنا بند کرتے تھے وہ اور اوپر والا حصہ جو گردن ہے تو اس میں جو ہے گانٹ بندھا ہوا ہے لگا ہے تو اس میں وہ لوگ پانی بھرتے تھے اس کو پانی کی مشق کہتے تھے آب مشق تو وہ ہے تو پانی کا مشکیزہ بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ اہل عرب زیادہ تر اسی کو استعمال کرتے تھے پانی کے لیے گھروں میں بھی اس لیے کہ کھال تو مل جاتی تھی گھر میں اور مٹی کے برتن بھی ہوتے تھے لیکن سفر میں جب جاتے تھے مٹی کے برتنوں کو یہ زیادہ ساتھ نہیں لے جاتے صرف کھانے پکانے کے لیے باقی پانی وغیرہ کے لیے یہ استعمال کرتے تھے کن کو انہیں مشکیزوں کو تو ان میں جو پانی رہتا تھا اور اس کو اٹھانا اور لے جانا یہ آسان ہوتا تھا اور اس میں وزن زیادہ نہیں رہتا تھا اس میں ہلکا پن رہتا تھا تو اس یہاں بھی میں نے پہلے دیکھا ہے کہ وہ جو پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے سری نگر میں اور دوسری جگہوں میں اور صبح صبح آتے تھے تو وہ پانی کی وہ مشق پیچھے باندھ کے اور یوں کرتے تھے اور یوں کرتے تھے ڈالتے تھے کس میں راستوں میں اب تو گاڑیوں کے ذریعے ڈالا جاتا تھا تو یہ بہت کام میں یہ اس کو کھال کو لاتے تھے تو جوتے بناتے تھے اس کے اور چپل بناتے تھے اس کے اور کھال کے وہ جو مشکیزہ بناتے تھے اور بھی دوسری چیزیں بنائی جاتی تھی اس کی اہل عرب اس کو بہت کام میں لاتے تھے اور بعض مرتبہ یہ اونٹ وغیرہ کی کھالوں کو جوڑ کے چھوٹے چھوٹے خیمے بھی بناتے تھے تو اونٹ کی کھال کے خیمے تو اس طرح سے آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کی کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور خود مر جائے گا تو اس کو تو پھینک دیتے ہیں لوگ لیکن اس کی کھال کو کیا کر لو اس کی کھال کو اتار لو برونٹ اس پتہ تم یون یم نہ تم بوٹ ووٹ وغیرہ بناون اس تم اس پتہ تمس کیا کرن مسلو والن تو پتہ سو برن کھمبس من منڈن اس تم پتہ تم تک باقی چیز بناون بہرحال یہ روایت یہ ہے آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کھال کو دباغت اس کو کیوں نہیں دی اور تاب اس سے نفع اٹھاتے تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ تو مر چکی تھی یہ بکری یہ تو مری ہوئی ہے مردار ہے آپ نے فرمایا ہاں مردار ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا کھانا لیکن اس کے کھال کو استعمال میں لانا یہ حرام نہیں ہے اب اس میں ایک لفظ آیا تھا صدقہ تو صدقہ دیا تھا ان کو وہ جو باندھی تھی حضرت میمونہ کی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی تھی تو ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم کو بھی کھلاؤ اس میں سے کچھ بے تکلفی تھی تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ تو صدقے کا گوشت ہے کس کا یعنی یہاں صدقہ تقسیم ہو رہا تھا تو میں نے وہ لے لیا پہلے زمانے میں یہ جو بھیڑ وغیرہ ذبح کرتے تھے یہ صرف غریبوں کو دیا جاتا تھا کہتے تھپ تھپ ہے نا آج کھون غریب تھی تو امیر تھی یس بتاؤ تو سو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر میں نے اس کو صدقے کی نیت کی ہے تو خود دینے والا بھی گناہ گار ہو جائے گا آپ نے مالدار کو کیوں دے دیا یہ صدقہ اور اگر مالدار کو معلوم ہے یہ صدقہ ہے تو اس کو لینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا انما الصدقات للفقراء انما الصدقات یہ جو صدقہ آپ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں یہ فقراء کا حصہ ہے کن کا یہ فقراء کا حق ہے آپ مالدار بھی لے لیتے ہیں تو بہرحال تو غریب لے سکتا ہے ہاں غریب لینے کے بعد اگر کسی کو دے دے اپنی ملکیت میں لینے کے بعد تو الگ مسئلہ ہے پہلے وہ تو مالک بنے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ کھلاؤ تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ صدقہ ہے مطلب یہ ہے کہ صدقے کا گوشت آپ کھاتے نہیں چونکہ ملکیت جب تبدیل ہوتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے آپ نے فرمایا لکی صدقۃ لکی ولنا ہدیۃ ولنا کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تو یہ صدقہ ہے
اور चूँकि आप इसकी मालिक बन चुकी है, मालिक बनने के बाद इसका हुक्म बदल गया है, अगर हमको आप खिलाना चाहें तो वो आपकी जानिब से हदिया होगा। क्या होगा? लकी सदाकतुन वलना हदियतुन। तो बहरहाल तो ये है कि मुसलमान की कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए। तो आपने फरमाया कि ये जानवर जो मर जाएगा खुद, तो उसकी खाल को क्या कर लें, आप दबागत कर लें और इसके इस्तेमाल ला सकते हैं। तो ये हलाल जानवरों के बारे में ही नहीं है। मसलन शेर की खाल है, भेड़िए की खाल है, और इस तरह से और जानवरों की खाल है, उस खाल को अगर दबागत दी जाए और उसको साफ पाक कर लिया जाए तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता एक रिवायत आगे आएगी, वो रिवायत ये है, आपने जो जंगली जानवर हैं जैसे शेर है और ऐसे ही वो रीछ है, ये सारी चीज़ें हैं, टाइगर, वो ये आपने उनके खालों को इस्तेमाल करना नापसंद फरमाया। क्यों? इसलिए कि अरब के जो बड़े बड़े मालदार लोग होते थे तो वो ये शेर की खाल वगैरह ला के उसको जीन बनाते थे घोड़े के ऊपर, तो जीन के ऊपर वो लगाते थे। तो आपने फरमाया इससे तो तकब्बुर आता है। क्या आता है? तकब्बुर आ जाता है। तो चीज़ों के असरात होते हैं। मुसलमान तो सीधा साधा आजिज़ इंकिसार होना चाहिए। तो ये जो लोग नीचे शेर की खाल पर बैठे हुए हैं, ऐसी बात है, शेर की खाल पर बैठा हुआ है तो शेर की तो सिफतें आएंगी ना तो अपने आप को बादशाह समझेगा। तो इस तरह से उन चीज़ों के इस्तेमाल को आपने नापसंद फरमाया, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करेगा कोई तो जायज़ तो हो जाएगा, तो लेकिन आपने उसको पसंद नहीं फरमाया। तो पसंद न फरमाना अलग है और हराम होना अलग है। तो मैंने खुद भी देखा है कि बड़े बड़े मालदारों के घरों में उनके जो है वो जो आज डोरमेट जिसको कहते हैं कि दरवाजे के ऊपर जो एक चटाई सी रहती है छोटी सी, तो वहाँ मैंने देखा कि कहीं शेर की खाल है और कहीं चीते की खाल पड़ी हुई है। बड़े बड़े मालदार लोग हैं, चीते की खाल है। तो इस तरह से बाज़ बड़े जो मालदार होते थे शेर की खाल के ऊपर बैठते थे। तो ये रिवायत आगे आएगी। वान सऊदत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ौजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ालत मातत लना शातुन फदबगना मस्कहा सुम्मा माज़िलना नबीदु फ़ीही हत्ता सार शन्नन। रवाहुल बुखारी। ये अज़वाज मुतहरात में से एक ज़ौज मोहतरमा है, इनका नाम मुबारक हज़रत सऊदा, हज़रत जी। तो हज़रत सऊदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये रिवायत फरमाती हैं कि मातत लना शातुन, एक बकरी हमारी मर गई, फदबगना मस्कहा, तो हमने उसकी खाल को जो है उसको दबागत की, ऐसी मंड तो हंस पात सा बस्त। फिर क्या हुआ? सुम्मा माजिलना नबीद फीही, फिर हम बराबर उसमें नबीज बनाते रहे, हत्ता सारा शन्नन, यहाँ तक कि वो पुरानी हो गई। पुरानी होने के बाद जगह जगह वो फटने लगी। तो ये नबीज़ क्या चीज़ है? अहले अरब रात को पानी के अंदर कुछ चीज़ें डालते थे, जैसे खजूर, जैसे किशमिश और मुनक्का। मुनक्का और किशमिश में क्या फ़र्क है? वो भी अंगूर है, ये भी अंगूर है। बड़े अंगूर जो होते हैं वो जिनको जब सुखाया जाता है उसको मुनक्का कहते हैं। क्या कौशिर मतलब मुनक जी। और वो जो छोटे छोटे वाले अंगूर होते हैं जब वो खुश्क हो जाते हैं तो उसको जो बन जाता है वो तो किशमिश बन जाता है। तो ये लोग जो है वो मुनक्का डाल के रखते थे, किशमिश डाल के रखते थे पानी में। ज़्यादातर तो खजूर रखते थे क्योंकि खजूर उनके यहाँ की पैदावार थी। तो रात को पानी में डाल दिया, उसमें खजूरें भी डाल दी, सुबह जो है वो नहार में उसको पी लेते थे। तो पानी का तो पानी भी है और उसमें जो खजूर के असरात आते थे, यानी हल्का फुल्का मज़ा उसमें आता था। उसको अहले अरब नबीज़ कहते थे। तो नबीज़ तमर, खजूरों का नबीज़, ये लोग उसको पीते थे। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग रात को पानी में वो डाल के रखते हैं और खजूर वगैरह सुबह पी लेते हैं। बाज़ लोग जो है दूध के अंदर खजूरें डाल देते हैं। हकीम साहिबान लिख लेते हैं उनको कि काल त्राइजी या सईद अदस मुझ कम खजर सुबह के तो ग्रक वनिस मज थवन ठान ठान पे बंद कर तम खजर सुबह तक हुनियमित तथ मज, तो वो उसको खा लेते हैं। वो बड़ा जो है मुकवी है, उससे बड़ी क़ुव्वत आती है। तो ये अहले अरब की आदत थी, ये नबीज़ बनाते थे, नबीज़ तमर वगैरह। इस तरह से यहाँ यूपी वगैरह मैंने देखा वहाँ चने डालते हैं रात को। तो वो रात भर वो चने रहते हैं, वो काबिल इतने मोटे होते हैं, तो सुबह उसमें थोड़ा सा कुछ नमक वगैरह मिला के और नाश्ते के तौर पर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये अहले अरब नबीज़ बनाते थे बर्तनों में। तो हज़रत सऊदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसी खाल में, जिसको हमने मशकीज़ा बनाया था बाद में, उसी में हम नबीज़ डालते थे
और उसको हम पीते थे। मालूम हुआ कि जब वो खाल खुश्क हो जाए और उसको दबा कर दी जाए तो उसमें अगर पानी डाल दिया जाए उस पानी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको पानी को भी पी भी सकते हैं। इसे कि नबीज़ जो है इसको तो पिया ही जाता है। फरमाते हैं कि हम उसमें नबीज़ बनाते थे हत्ता सारा शन्नन, यहाँ तक कि वो मश्क पुरानी हो गई। ये आपने फरमाया। तो मालूम ये हुआ कि इन चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इसी तरह से अगर उसका और कोई चीज़ बनाई जाए, टोपी बनाई जाए, मोज़ा बना दिया जाए, दूसरी चीज़ें बना दी जाएँ, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि असल में बयान चल रहा है नापाक चीज़ पाक कैसे हो जाए, नापाक चीज़ तो ये बयान है। इसी के अंदर ये बहुत सारे मसाइल लाएंगे। मसलन जूता कैसे पाक हो जाएगा, ये रिवायत यही है कि आपने फरमाया कि जब कोई आदमी चल रहा हो और जूते के साथ उसको गंदगी लग जाए, फिर वो आगे चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ज़मीनी के ऊपर तो चलेगा और फिर गर्द गुबार उसमें लग जाए और ज़मीन के साथ वो जूता रगड़ खाए, यहाँ तक कि नापाकी के सारे असरात ख़त्म हो जाएं, आपने फरमाया जूता पाक माना जाएगा। अब इसमें फुक़हा ने लिखा है उस ज़माने के जूते कैसे थे। उस ज़माने के जूते ऐसे थे जैसे हम खूब पहनते हैं, जैसे हम कि उसमें नक्श निगार बना हुआ नहीं है, उसमें मुस्तकिल एड़ी लगी हुई नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। तो ये जो प्लेन है इसका साफ़ होना बहुत आसान है। लेकिन अगर आज किसी का जूता हो, उसमें एड़ी बनी हुई है, उसमें नक्श निगार लगे हुए हैं, उसमें वो खाने बने हुए हैं ताकि तुम बरी बनाई, और अगर आप देखेंगे कि उसके बावजूद वो पाक नहीं होगा तो नापाक ही माना जाएगा। वरना अगर वो ऐसा प्लेन है और आप चलते रहेंगे तो पाक हो जाएगा। आगे जाकर खुद मिट्टी खुद पाक करने वाली एक चीज़ है। हाँ, अगर कपड़े में नापाक चीज़ लग जाए और वो लिक्विड किस्म की हो, पेशाब वगैरह चाहे खूब में ही लग जाए चाहे जूते के ऊपर ही पड़ जाए, तो उसको फुक़हा ने लिखा है उसको क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। लेकिन जो जुर्म वाली है, जो जुर्म ख़त्म हो गई, उसके जिस्म वाली नजासत वो ख़त्म हो गई, तो उसको शरीयत ने बताया ये पाक माना जाएगा। ये रिवायत ये है। फरमाया इज़ा वतिया अहदकुम बिनालिहिल अलअज़ा फ़इन्न तुराब लहु तहूरुन। चूँकि पाकी का बयान चल रहा था, इस वजह से इन हजरात ने इस रिवायत को यहाँ ले आए। तो ये मालूम हुआ कि मिट्टी से भी बहुत सारी चीज़ें पाक हो जाती हैं। इधर से तो आपने फरमाया कि खाल को इस्तेमाल में लाओ, लेकिन इधर से जो दरिंदे हैं उनकी खाल को इस्तेमाल करना आपने नापसंद फरमाया। ये रिवायत वही है। हज़रत मिक़दाम इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, क़ाला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन लुब्स जुलूद सिबा व रकूब अलैहा, कि जुलूद सिबा इन्हें दरिंदों की खालों को पहनना और उनके ऊपर सवार होना। सवार होने का मतलब यह है कि सवारी के ऊपर आपने उसको रख दिया, फिर उसको सवार हो गया, आपने इसको मना फरमाया, नापसंद फरमाया। इस एतबार से क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आदमी के अंदर क्या आता है, गुरूर आता है। मकान का असर मकीन पर पड़ता है और मकीन का असर मकान पर पड़ता है। आप छोटे से झोंपड़े में रहते हैं, दिल में आजिज़ी इंकिसारी है, बहुत बड़ी हवेली है तो हवेली का असर दिल में आ ही जाएगा। तो मामूली किस्म की कोई खाल नीचे कोई बहुत मामूली किस्म का कमल है तो बस उसके असरात भी पड़ जाते हैं। और बहुत ज़बरदस्त आला दर्जे के कोई कमल आपने लाई 5-10 हज़ार की, तो गोया कि चीज़ों के भी असरात होते हैं। तो खुलासा यह है कि आपने मना फरमाया कि जो खाल है दरिंदों की वगैरह की, तो दरिंदों के असरात आदमी के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने मना फरमाया। लेकिन अगर ये मालूम ही नहीं है किस चीज़ की है, मिसाल के तौर पर आज जैकेट बहुत आते हैं, तो ये मालूम ही नहीं ये कौन सा जानवर था, तो सिर्फ तो खंजीर वाली खाल तो उसको अगर आप चाहे कितना ही रंग दें, कितना ही उसको दबा कर दें, वो तो नापाक ही माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा आम जानवर जो हैं, दरिंदे हों जो भी हों, उनको अगर जब दबा कर दी जाए, फिर रंग दिया जाए, फिर उनके बाल भी नज़र नहीं आते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आते हैं, तो उसका कोई जैकेट होगा, कोई और चीज़ होगी, कोई जूता होगा, उसको इस्तेमाल करना वो ममनू नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने एक एहसान किया है, जानवरों की खालों को दबागत के बाद हमारे लिए इस्तेमाल करना उसको जायज़ करार दिया। तो ये रिवायत है। अब सवाल यह है कि उन खालों का बेचना कैसा है, तो उसके बारे में भी यही है कि जब उसका पहनना मकरूह है, किसका, शेर की खाल वगैरह के दरिंद खालों का, तो उसकी बैशरा खरीद फरोख्त का भी वही हुक्म है, नापसंद आपने फरमाया। ये जिस चीज़ का इस्तेमाल मकरूह है उस चीज़ की खरीद फरोख्त भी मकरूह है। जैसे तंबाकू और सिगरेट,
तंबाकू और सिगरेट पीना मकरू है, इसलिए सिगरेट का कारोबार भी क्या है, मकरू है, उसमें कराहत है, वो कोई अच्छा कारोबार नहीं है, क्योंकि वो लोगों को क्या सप्लाई कर रहा है। तो एक दुकानदार खुद तो पीता नहीं, दूसरों को पिलाता है। मैंने कहा ठीक है, आप खुद तो पीते नहीं है, लेकिन दूसरों को सप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ें। तो आगे फिर रिवायत आ रही है, अब्दुल्लाह इब्न उकैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त हमारे पास आया। आप खतूत भी लिखवाते थे कि उन खतूत में जो है वो अहकामात होते थे, कहीं ज़कात के अहकामात, कहीं हलाल और हराम के अहकामात, कहीं दूसरी चीज़ें। तो आपने फरमाया कि उसमें क्या लिखा था, अल्ला तंतफ़िउ मिनल मैतति बिइह्याबिन वला असबिन, कि कच्ची खाल जो हो उसको इस्तेमाल मत करो, कच्ची खाल को इस्तेमाल जब तक उसको आप दबागत न दें। इहाब के माने आते हैं कच्ची खाल, और जिल्द का लफ्ज़ जहाँ आ जाएगा जो किताबों में, उससे मुराद है पुख्ता खाल, पुख्ते से मुराद है दबागत के बाद। वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर अन युस्तमतअ बिजुलूदिल मैतति इज़ा दुबिगत, रवाहु मालिक व अबू दाऊद। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जो जानवर खुद मर जाएं उनकी खालों से तुम नफ़ा उठा लो, उनकी खालों से नफ़ा, यानी उनको काम में लाओ। इज़ा दुबिगत, जब उसकी दबागत की गई हो, दबागत से पहले उसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। एक तो ऊपर वाला हिस्सा है, वो तो बहरहाल खुश्क होता ही है, उसमें तो बाल होते हैं, बाल तो नापाक नहीं होते हैं, इसलिए कि बालों के अंदर कोई चीज़ सराहत नहीं कर जाती है, लेकिन वो जो दूसरा साइड उसका है, तो चूँकि वो गीला रहता है इसलिए वो नापाक ही होगा जब तक उसको आप साफ़ न करें। साफ़ करने के तरीक़े मुख्तलिफ हैं, धूप में रख सकते हैं, मिट्टी लगा सकते हैं, नमक लगा सकते हैं, और भी कोई केमिकल आ जाए वो भी। और रिवायत आगे आ रही है उसमें पानी का तज़किरा और कीकर के पत्तों का तज़किरा है। आपने फरमाया पानी लगाओ इस पर और कीकर के पत्ते लगाओ, यानी कीकर के पत्ते किस में डालो, पानी में, तो उसके अंदर असरात आ जाएंगे, और फिर उसके बाद उसको साफ़ कर लो, धो लो, धूप में रख लो, सूख जाए तो वो पाक हो जाएगी। वान मैमूनत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मर्र अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिजाल मिन कुरैश यजुर्रून शातन लहुम मिस्ल हिमारी फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौ अख़ज़्तुम इहाबहा क़ालू इन्नहा मैततुन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतहिरुहा अल-माउ वल क़रज़ु। इस रिवायत का मतलब क्या है, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अज़वाज मुतहरात में से एक हैं, वो फरमाती हैं कि कुरैश की एक जमात एक बकरी को खींच रहे थे, यानी तिमस तिमस खगड़े खगड़े पकनावन ले जा रहे थे, उधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, तो यजुरून शातन लहुम मिस्ल हिमार, गधे की तरह थी वो। अब गधे की तरह का मतलब क्या है, जिस तरह से गधे को खींचते हैं इस तरह उसको खींचते थे, एक मतलब ये। दूसरा मतलब ये कि वो बहुत बड़ी बकरी थी, पहाड़ी बकरी। आपने देखो अगर कुछ बकरियां इतनी छोटी होती हैं, कुछ बकरियां तो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, बिल्कुल वो छोटा जो गधा होता था उसके बारे में, गधे के बारे उसके बराबर, तो बिल्कुल मिसल हिमार, यानी बड़ी बकरी थी। अब इसको वो खींच के ले जा रहे थे, तो आपने फरमाया कि भाई इसकी खाल क्यों नहीं उतारी आपने, इसकी खाल उतार लेते। तो उन्होंने कहा हज़रत ये तो मर चुकी है, तो खुद ही मर गई है ना, मैततुन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युतहिरुहा अल-माउ वल क़रज़ु, फरमाया पानी और कीकर के पत्ते, पानी और कीकर के इसको पाक कर लेते। मतलब तो यह है कि अगर आप इसने पानी से धो लिया होता और कीकर के पत्ते भी साथ लगा लिए होते तो ये खाल क्या हो जाती, पाक हो जाती। चूँकि मसला मालूम नहीं था सहाबा किराम को, इसलिए ये वाक़यात आ रहे हैं। वो समझते थे कि ये मर गई एक बकरी, इसलिए इसका खाना भी क्या है, हराम है, तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने फरमाया कि हुर्रिम अक्लुहा, इसका गोश्त खाना तो हराम है, लेकिन इसकी खाल को इस्तेमाल करना हराम नहीं है, ये आपने फरमाया। वान सलमत बिन मुहब्बिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाल इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाअ फी ग़ज़वत तबूक अला अहली बैतिन फ़इज़ा क़िरबतुन मुअल्लक़तुन फ़सल अल-माअ फ़क़ालू लहू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा मैततुन फ़क़ाल दिबाग़ुहा तुहुरुहा। ये एक वाक़या नकल करते हैं, ये खातून है सलमा इब्न मुहब्बिक, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गज़वे तबूक से तशरीफ़ ला रहे थे। इन्हें गज़वे तबूक के दौरान आप एक घर में दाखिल हुए तो आपने उनके पानी मांगा कि वे पीने के लिए पानी दे दो। तो आपने देखा कि एक मश्क जो लटकी हुई है। लटकने का मतलब क्या है? ये जो पानी की मश्क होती थी ये उसको लटका के रखते थे। एक रस्सी इधर से बंद कर दी, एक रस्सी इधर से बंद उसमें, तो फिर बवक्त ज़रूरत उसको खोल लिया और उसमें से पानी निकालते थे। तो आपने देखा कि एक मश्क लटकी हुई है। आपने फरमाया कि पानी पिलाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुर्दा बकरी की खाल है। किसकी? यानी वो बकरी खुद मर चुकी थी, हमने ज़बह नहीं किया था, तो फिर उसके बाद हमने उसका खाल बना लिया। तो हज़रत ये मुर्दार की खाल है। आपने फरमाया कि आपने इसको दबागत दिया की थी? मैंने कहा जी की थी। आपने फरमाया बस इसको आपने दबागत की और उसके बाद ये पाक हो गया, इसलिए इसको पानी पिलाओ। सवाल है कि फिर उन्होंने पानी क्यों रखा था उसमें? तो जाहिर सी बात है हर बर्तन में पानी पीने के लिए नहीं होता। बाज़ मरतबा पानी होता है बर्तनों में इस्तेमाल के लिए, मसलन कपड़े धोने हैं और दूसरी चीज़ें धोनी हैं और दूसरे वज़ू वगैरह बनाने हैं, तो पीने का मसला अलग है और इस्तेमाल का मसला अलग है। तो गारा भी बनाते थे वो लोग, जानवरों को भी पानी पिलाते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में उसको लाते थे। वो घर वाले ख़ुद भी उससे पीते नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा हज़रत हम तो इससे खुद पीते नहीं है। कहा क्यों? कहा ये तो मुर्दार की खाल है। आपने फरमाया आपने इसको दबागत दी थी? हज़रत बिल्कुल दी थी। फरमाया इसका दबागत देना इसको पाक हो गई। इसका मतलब यह है कि ये पानी जो इसके अंदर रखा हुआ है ये नापाक नहीं है। आपने फरमाया पिलाओ पानी। तो उन घर वालों का मसला भी मालूम हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मश्क से जो है पानी पी लिया। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना नुसल्ली मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला नतवद्दउ मिनल मौती, रवाहु तिरमिज़ी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हम लोग हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे और ज़मीन पर चलने की वजह से वज़ू नहीं करते थे। वज़ू इसका क्या मतलब है कि अहले अरब के यहाँ बाज़ लोगों के यहाँ जूता होता था, बाज़ लोगों के पास जूता भी नहीं होता था। तो फरमाते हैं कि हम चलते रहते थे, जैसे सफ़र में चल रहे हैं, जैसे और जगहों में चल रहे हैं, तो गर्द गुबार पानी के पाँव के ऊपर चढ़ता रहता था। नमाज का वक्त हो गया तो अल्लाह अकबर। मतलब यह है कि हम जब बावज़ू होते थे, फिर जब हम चलते थे या काम करते थे तो हमारे पाँवों के ऊपर गर्द गुबार लगता था, तो हम उसकी वजह से वज़ू नहीं बनाते थे, बल्कि वज़ू पहले से है और नमाज़ पढ़ते थे। इससे मालूम हुआ कि जो लोग खेतों में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर वो बावज़ू हैं क्या है, लेकिन गर्द गुबार बहुत लगा हुआ है, पैरों पर गर्दा चढ़ा हुआ है, पैरों के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, हाथों में गर्दा चढ़ा हुआ था, चढ़ता ही है, तो अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहें वो पहले से बावज़ू हो, अलग से वज़ू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इन चीज़ों की वजह से वज़ू पर कोई असर नहीं आएगा। एक मतलब तो इसका ये है। दूसरा मतलब इसका ये है कि अगर चलते चलते हमारे पाँव नापाक हो जाते थे, पाँव के ऊपर गंदगी लग गई, पाँव के ऊपर गंदगी लग गई, हम पूरा वज़ू नहीं करते थे, पूरा वज़ू नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ उसी जगह को धोते थे जिस जगह पर गंदगी लगी हुई है। इस मसले को समझना चाहिए। क्या? एक है वज़ू का टूट जाना, एक है वज़ू का टूट जाना, एक है किसी उज़ू का नापाक होना। वज़ू ये फुट तेल बूथ छल तेल नाड़ छल पूरे वज़ू बनावन, मगर बिलफर्ज अगर जन नापकी पे खोर पे क्या क्यों बावजूद नापकी लाड़े कत खोरस सवाल वज़ू फुटा कि वज़ू फुट नी क्या नापकी लाड़े खोरस वज़ू क्या फुट वज़ू फुटान तेल बदन मज अंदर नापकी नेरी, अलबत्ता खोर गो नापाक, खोर गो खोर यो चलन सोरे वज़ू करुन कह, ये मसला है। तो हज़रत ने फरमाया कि वला नतवद्दउ मिनल मौती, हम जो है ज़मीन पर चलने की वजह से हम फिर वज़ू को दोहराते नहीं थे, ये आपने मसला फरमाया। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कानतिल किलाबु तुक़बिलु व तुदबिरु फिल मस्जिद फ़ी ज़मानि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़लम यकूनु यरुशून शैअन मिन ज़ालिक, रवाहुल बुखारी। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी के अंदर कुत्ते आते थे जाते थे, और हम उन कुत्तों के आने और जाने की वजह से मस्जिद को धोते नहीं थे, मस्जिद को धोते। इसमें बहुत सारे मसाइल फ़ुक़हा ने निकाले हैं। क्या मसला?
सबसे पहले मस्जिद नबवी की शक्ल क्या थी? तो वहाँ मदीना तैयबा में उन्होंने मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ, मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ वो एक किस्म की छोटा सा अजायब घर बनाया है। एक में तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ उन्होंने रखी हैं, एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ वो मालूमात है। तो उसमें उन्होंने पुराने ज़माने की मस्जिद नबवी भी बनाई है। और एक जगह मदीना तैयबा में एक है, एक म्यूज़ियम, वहाँ सिर्फ यही मस्जिद नबवी का और उसी में है। तो पुराने ज़माने के मदीना तैयबा का नक्शा उन्होंने बनाया है कि बनु कुरैज़ा कहाँ थे और बनु नज़ीर कहाँ थे और खंदक कहाँ खोदी गई थी, बाकायदा खंदक भी बनाई हुई है। तो बराबर उसी ज़माने और खजूर के दरख्त किस तरह से थे और कुफार का लश्कर कहाँ से आया था, ये सारा उन्होंने उसमें बना लिया। तो उसमें उन्होंने मस्जिद नबवी की वो पुराने ज़माने की एक शक्ल भी बना ली है। उसकी शक्ल क्या थी? तो उसमें यह था कि दरवाज़ा नहीं था, दरवाज़ा इब्तिदा की बात है। तो सिर्फ सामने वाले कुछ जो है सफ़े थे उनमें छत लगी हुई थी और इधर से एक दीवार गई, उधर से एक दीवार गई, तो दरवाज़ा है ही नहीं, दरवाज़ा और दीवारें भी बहुत पस्त हैं। फिर उसके बाद दूसरी तामीर हुई, तीसरी तामीर हुई, और वो जो पहले मस्जिद अक्सा की तरफ जो किबला था तो वो भी बनाया है, और उसके बाद जो किबला बदल गया है तो फिर वो भी बनाया, ये सारी चीज़ें। तो उस ज़माने में ये कुत्ते जो थे आते रहते थे, मदीना तैयबा में कुत्ते बहुत थे। अलबत्ता काले कुत्तों के मारने का आपने हुक्म दे दिया, मारो काले कुत्तों को। फिर फरमाया कुत्तों को मार डालो। आप कुत्तों को मार डाला, कुत्ते वहाँ से कुछ भाग गए, उसके बाद अब मदीना तैयबा में कुत्ता नहीं रहा। लेकिन जो देहात के लोग आते थे मदीना तैयबा किसी काम से, तो कुत्तों की आदत होती है अपने मालिक के साथ हो लेते हैं। तो सहाबा किराम फिर डंडा उठा के उसके पीछे चल देते थे। आपने जब देखा कि कुत्तों की तो नफरत इनके दिलों में बैठ गई, इसलिए कि अहले अरब कुत्तों के साथ वही मामला करते थे जो आजकल अंग्रेज़ कुत्तों के साथ करते हैं। कहीं इस कंधे पर रख लिया, कहीं गोद में बिठा लिया, कहीं साथ में बिठा लिया। तो कुत्तों की नफरत दिल में डालनी थी, तो अब देखे नफरत तो बैठ गई है। कुत्ते को देखते ही तो फ़ौरन डंडा उठाते हैं। आपने फरमाया आप इन कुत्तों को क्यों भगाते हैं? मैं कहा हज़रत ये तो कुत्ते हैं। आपने फरमाया ये भी तो मखलूक है अल्लाह की, छोड़ दो इन्हें। तो आप कुत्ते रहते थे वहाँ, लेकिन लोगों के साथ कोई उनका ताल्लुक़ नहीं था इस तरह का। तो ये कुत्ते मस्जिद नबवी में भी आते थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते थे कि ये मस्जिद में कुत्ते रहते थे, हम आते थे उनको भगाते थे, तो ये आते थे जाते थे। तो इसकी वजह से हम मस्जिद पाक को धोते नहीं थे। तो मसला क्या है? मसला यह है कुत्ते का जो जिस्म है, बाहर वाला जिस्म, ये अगर किसी चीज़ के साथ लग जाएगा तो वो चीज़ नापाक नहीं होगी। कुत्ते के पाँव अगर किसी जगह पर रहे तो वो जगह नापाक नहीं होगी। इससे मसला निकला अगर मस्जिद के अंदर कुत्ता घुस आया इत्तिफाकन तो मस्जिद उससे नापाक नहीं होगी। चलते चलते अगर कुत्ता हमारे बदन के साथ रगड़ खाकर चला गया तो हमारा बदन नापाक नहीं होगा, इसलिए कि कुत्ते का बाहर वाला जिस्म जो है ये दूसरी चीज़ को नापाक नहीं करता है। हाँ, अगर उसके ऊपर और कोई नापाकी लगी हुई है तो अलग मसला है, लेकिन खुद कुत्ते का जिस्म जो है ये किसी की चीज़ के साथ लग जाएगा तो वो चीज़ नापाक नहीं होगी। देखो, खाना हराम होना अलग है और उसका बदन के साथ लग जाना ये अलग। हाँ, अलबत्ता कुत्ते के जो है मुंह का जो है वो लुआब, क्या वो अगर लग जाए, कपड़े में लग जाए, कहीं लग जाए, वो नजुसल ऐन है, नापाक है, नजासत गलीज़ा है, उसको धोना ज़रूरी है। लेकिन ये जो कुत्ते रहते हैं हमारे आसपास, ये ज़बान बाहर नहीं निकालते हैं, ये वैसे खामोश रहते हैं ऐसे मुंह बंद करके। लेकिन जो कुत्ता जब सफ़र करता है, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में उसको जाना हो तो, और वो जो थक जाता है तब ज़बान निकालता है। आप बाहर जाके देख लेना, इस वक्त किसी कुत्ते की ज़बान जो है बाहर लटकी हुई नहीं होगी। वो तो उस वक्त लटकी हुई होगी जब वो सफ़र कर रहा हो, और या जब बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो, क्या हो, गर्मी का बहुत ज़बरदस्त ज़ोर है, तो उस वक्त तो निकालेगा, वरना नहीं। तो इस तरह से अगर कुत्ता मस्जिद में घुस आएगा तो मस्जिद को धोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर बारिश बरसी है और कुत्ते का जिस्म जो है वो गीला हो गया है तो ज़ाहिर सी बारिश ही तो बरसी, तो आप वहाँ से गुजर गए और आपकी चादर जो है या आपका फेरन, आपका कपड़ा उसके साथ लग गया, तब भी धोने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल इस रिवायत से फ़ुक़हाए किराम ने बहुत सारे मसाइल निकाले हैं। बज़ाहिर तो एक वाक़या है, लेकिन वाक़ये के साथ साथ इसमें मसाइल भी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कानतिल किलाब तुक़बिलु व तुदबिरु। तुक़बिल तुदबिर के माने आते हैं आना और जाना, कि मस्जिद में ये आते और जाते थे। जब देखते कोई मस्जिद में नहीं, आगे घुस गए, और जब देखा कोई आया तो उसने दूर दूर कर लिया और भगा दिया वहाँ से। तो आते और जाते थे। क्योंकि मस्जिद नबी वसी भी थी
तो जो पीछे वाला हिस्सा था तो उसमें ये रहते थे, कभी घूमते भी थे, इधर उधर आके घूम चले गए, क्योंकि मस्जिद नबवी की वो शक्ल नहीं थी जो आज है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों के दरवाजे खुले रखो, जितने कुत्ते अंदर आ जाए, नहीं। उसके बाद तो आपने मस्जिद के जो अहकामात बयान फरमाए, बाकायदा मस्जिद के लिए दरवाज़ा बनाया गया। आपने फरमाया छोटे बच्चों को भी मस्जिद में मत लाओ, क्योंकि उनके जो है वो पेशाब करने का क्या है, अंदेशा है। इस तरह से आपने फरमाया कि जिस चीज़ में बदबू हो वो इस्तेमाल करके मस्जिद में ना आए, वो कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खा कर ना आए। तो मस्जिद के आदाब आपने बयान फरमाए, लेकिन मसला अपनी जगह पर है, मसला और मस्जिद के आदाब अपनी जगह पर है। तो आजकल तो मस्जिदें बंद हैं, दरवाजे बंद रखने चाहिए, एहतिमाम भी करना चाहिए। ये नहीं कि मस्जिदें बस दरवाजे खुले रख लो, कुत्ते आ जाएंगे कुछ भी नहीं होगा। तो मसला अलग है और मस्जिद का अदब एहतराम अलग है। हाँ, मस्जिद से निकले आदमी फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर ले, अल्लाह का घर है, पाकीज़ा घर है, फरिश्तों का माहौल है, छोटे बच्चों को अंदर नहीं आने जाने देना है। इसी तरह से बाज़ जगह छोटे बच्चे मस्जिद में पढ़ते हैं, ये मसला समझना चाहिए। अगर वो बच्चे बालिग हैं, समझदार हैं, तो इजाज़त है क्या? मस्जिद में तालीम देना जायज़ है, लेकिन मस्जिद को दरसगाह बनाना जायज़। मुस्तकिल पुरानी मस्जिद को आप दरसगाह बना देंगे, दरसगाह का बोर्ड लगा देंगे, वह मस्जिद बन गई क्या, दरसगाह, इसकी इजाज़त नहीं। हाँ, मस्जिद में आप दर्स देना चाहें, मस्जिद मस्जिद रहे और आप दर्स दें वहाँ, उसकी इजाज़त है। तो यह है हुक्म कि छोटे छोटे बच्चे जो पेशाब भी कर लेते हैं और पाकी का उनको मस्जिद में पढ़ाना जायज़ नहीं। तो मस्जिद में पढ़ाना इसलिए कि कुछ पता नहीं है कि इनके कपड़ों पर क्या चीज़ लगी है, इनके पैर भी नापाक होते हैं कभी कभार। तो ये है, तो मस्जिद का एहतराम और इकराम अलग है और मसला अपनी जगह पर है। इत्तिफाकन कहीं घुस गया कुत्ता मस्जिद के अंदर तो मस्जिद के फ़र्श को धोने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ मरतबा बाज़ लोग पूरे मस्जिद के फ़र्श को उठा लेते हैं, अवलन ये भी पता नहीं वो घुमा कहाँ से, वो तो आया। और ये भी बात है कि कुत्ता जब मस्जिद में आ जाता है फ़ौरन बाहर निकलता है, क्यों? वो जब देखता है दाएँ बाएँ यहाँ तो दूसरा कुछ माहौल है, यहाँ तो कहीं निकलने का मौका भी नहीं, तो डर के मारे वो फ़ौरन बाहर निकल जाता है। तो बहरहाल ये मसला आया, क्योंकि इसका ताल्लुक भी पाकी और नापाकी के साथ है, इसलिए फरमाया फलम यकूनु यरशून शैअन मिन ज़ालिक, हम मस्जिद की किसी भी चीज़ को धोते नहीं थे। हालांकि मस्जिद में संग्रेजे पड़े हुए थे लेकिन धोते नहीं थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि